Assalamu alaikum, class 7th. Hope you will be fine. Students, here is your book of the trigonometry. So let's start our today's topic. Students, we are learning about verbs, transitive and intransitive. Verbs, transitive and intransitive. And in our previous lectures, we have discussed about transitive verbs. And then we have discussed about intransitive verbs, transitive verbs and intransitive verbs, and after then we have discussed about the verbs of incomplete predication and the verbs of complete predication. And now today we are going to discuss about some kinds of complements for intransitive verbs, and intransitive verbs can be followed by various kinds of words and phrases that work as complements. कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो कि उनके कम्प्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं. अ नाउन और अ नाउन फ्रेज. एग्जाम्पल, हिज नेम इज़ करीम. समन इज़ माई नीस. अ प्रोनाउन. एग्जाम्पल, द गर्ल इन द फोटो इज़ नॉट यू. ऑफ कोर्स इट इज़ आई. अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, माई aunt is coming to dinner. I am looking at those paintings. An adverb, you have come quite early. She has grown up so fast. An adverbial participle, why did the theatre close down? The carriage just went past. Students, look at this statement also. Adverbial participles are, हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि एडवर्बियल पार्टिसल्स भी इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ कम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं. तो एडवर्बियल पार्टिसल्स क्या है जी? ये एडवर्बियल पार्टिसल्स आर प्रपोजिशंस दैट कैन फंक्शन एज एडवर्ब्स. ये एडवर्ब्स के तौर पे फंक्शंस करते हैं और ये प्रपोजिशंस वाले वर्ड्स होते हैं या प्रपोजिशंस होते हैं. वाई डिड द थिएटर क्लोज डाउन? द कैरेज जस्ट वेंट पास्ट. एंड एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, यू लुक क्वाइट होपफुल. द बैंक इज़ क्लोज्ड. अ क्लास. नेक्स्ट आगे देखेंगे जी, क्लास भी एज अ कम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ होती है. इट सीम्स डैट नो बडी इज़ इंटरेस्टेड इन माई आइडिया. शी अंडरस्टूड वाई दे हैड नॉट गिवन हर द न्यूज़ अर्लियर. ओके स्टूडेंट, हमने डिस्कस की कि कम्प्लीमेंट्स के तौर पे कम्प्लीमेंट्स में कौन कौन सी काइंड्स ऑफ कम्प्लीमेंट हमने डिस्कस किए कि कौन से वर्ड्स हैं जो कम्प्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं. Next, come on the page number 27, and here is an exercise. See what kind of complements each of the intransitive verbs has in the given sentences. 5 sentences are given, and we have to identify the kinds of complements. Number 1 is the teacher looked angry. Here underline the word angry, and it is adjective. I felt that something was wrong with my computer. That something was wrong with my computer is a clause. The princess excelled into good governance. The princess excelled in good governance. In good governance is prepositional phrase. Next, both Alim and Tahir are absent. Both Alim and Tahir are absent. Here underline the word absent, and it is an adjective. Is that lady over there your aunt? Here your aunt is noun phrase. Okay students, next exercise को देखेंगे जी. Follow the instructions given in the brackets to complete the sentences with suitable complements from the box. Some may have more than one answer. वो कहने की हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है, 15 सेंटेंसेस हमें गिवन है और 15 सेंटेंसेस के लिए हमारे पास कम्प्लीमेंट्स भी मौजूद है. और नेक्स्ट इन्होंने सेंटेंस के सामने उसकी टाइप दे दी है कि हमने सेंटेंस को किस काइंड के अकॉर्डिंग इसका कम्प्लीमेंट हमने इसमें फिट करना है. नंबर 1 सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स. द नाइट सून फेडेड अवे. एंड अवे इज़ अ एडवर्बियल पार्टिसल्स. अवे इज़ एन एडवर्बियल पार्टिसल्स. नेक्स्ट है यू कैन कोप विद द प्रेशर. With the pressure, it is prepositional phrase. With the pressure is prepositional phrase. You should strive for excellence. You should strive for excellence, and for excellence is prepositional phrase. It appears to be the correct address. It appears to be the correct address, and the correct address is noun phrase. My father became enraged. My father became enraged, and enraged is adjective. Some people believe that Atlantis really exists. That Atlantis really exists. ये हमारे पास क्लास आ रही है स्टूडेंट्स.
I opened the door and the dog ran in. It is adverbial particles. In is adverbial particles. I am talking to my friend. Here to my friend is prepositional phrase. To my friend is prepositional phrase. नेक्स्ट आगे देखेंगे स्टूडेंट्स. शी इज़ नो मोर अ स्टूडेंट. शी इज़ नो मोर अ स्टूडेंट. अ स्टूडेंट इज़ नाउन फ्रेज. द एंट्रेंस टेस्ट लास्टेड 3 hours. 3 hours हमारे पास नाउन फ्रेज है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आगे देखिए जी, सेंटेंस नंबर 11. ही स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम. आउट ऑफ द रूम इज़ एडवर्बियल फ्रेज. नेक्स्ट है जी, चिल्ड्रन कैन डिफ्रेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग. राइट फ्रॉम रॉन्ग इज प्रपोजिशनल फ्रेज. Osama is said to be a magician. A magician is noun phrase. The bird lives in that tree. In that tree is prepositional phrase. He answered in a polite manner. In a polite manner. In a polite manner is adverbial phrase. Okay students, हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन थे और उनके सामने सेंटेंस के सामने उसकी काइंड लिखी है कि इस सेंटेंस में जो वर्ड ऐड होगा वो ये होगा. मीन एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल पार्टिकल्स या प्रपोजिशनल फ्रेज. तो मैंने आपको जो वर्ड यहाँ पे फिलअप करवाए सेंटेंसेस में उनके मैंने साथ को आपको काइंड भी बता दी कि अवे क्या है एडवर्बियल फ्रेज, विद द प्रेशर क्या है प्रपोजिशनल फ्रेज. इसी तरह से सारे वर्ड्स हमने कंप्लीट किए. नेक्स्ट आगे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर जी आ रही है जी. लेट्स रिवाइज. अब हमने रिवाइज करना है जो कुछ हमने अपने इस कंप्लीट टॉपिक में पढ़ा है, मतलब कि वर्ब से रिलेटेड पढ़ा हमने. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो वर्ब्स में हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हमारी जो एक्सरसाइज उससे रिलेटेड है. आइडेंटिफाई द वर्ब्स एंड देयर ऑब्जेक्ट्स इन दीज सेंटेंसेस. पिक आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इफ़ एनी. हमने ऑब्जेक्ट्स को पहले रिकॉग्नाइज करना था, देन उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी सामने लेकर आएँ. ही गेव द पुअर मैन सम फूड. Gave is verb. Gave is verb. Poor man indirect object and some food direct object. The security guard blew his whistle. Blew verb and his whistle direct object. The guard rang the school bell. Rang is verb and the school bell is direct object. He looked at the fish swimming in the water. Looked at is verb and the fish is direct object. So the fish is direct object. You should tell them the truth. You should tell them the truth. Should tell is verb and them is indirect object. The truth is direct object. The salesman sells his customer mobile phones. Sells is verb. His customers indirect object and mobile phones direct object. The boy told his friend his big secret. Told is verb, his friend indirect object and his big secret is direct object. Their teacher showed the children a movie on the TV. Showed is verb, the children indirect object, a movie direct object. They promised him a surprise gift. They verb, him indirect object, a surprise gift direct object. The teacher asked her student a number of questions. Teacher asked इसमें हमारे पास क्या है वर्ब है, टीचर नहीं. इसमें हमारे पास ask is verb, her students indirect object and the number of questions direct object. Okay students, next हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8 आ रही है. इसमें हमने क्या करना है जी, अंडरलाइन द कम्प्लीमेंट्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स. इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्स मौजूद हैं उन्हें हमने क्या करना है अंडरलाइन करना है. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट वी हैव टू अंडरलाइन द कम्प्लीमेंट्स. माई अंकल इज़ साजिद हुसैन. अंडरलाइन दी साजिद हुसैन. शाजिया इज़ माई नेबर. माई नेबर को अंडरलाइन करें. माई बेस्ट फ्रेंड इज़ यू. यू को अंडरलाइन करें. इन दिस फोटो द पर्सन विद अ हैट इज़ मी. मी को अंडरलाइन करें. शी इज़ लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ्स. एट द ओल्ड फोटोग्राफ्स को अंडरलाइन करें. दे हैव रीच्ड रादर लेट. लेट को अंडरलाइन करें. माई फादर ड्राइव्स हिज कार वेरी फास्ट. अंडरलाइन द फास्ट. दे सा द व्हीकल गोइंग पास्ट. अंडरलाइन करें पास्ट को स्टूडेंट्स. माई मदर लुक्ड वेरी अपसेट. हियर द अपसेट विल बी अंडरलाइंड. द शॉपिंग मॉल इज़ क्लोज्ड नाउ. द वर्ड क्लोज विल बी अंडरलाइंड.
It seems that the monsoon will be normal this year. Here the phrase "the monsoon will be normal this year" will be underlined. Those children understood why they couldn't eat too many chocolates. Here this phrase "why they couldn't eat too many chocolates" will be underlined. Okay students, next हमारे पास एक्सरसाइज नंबर आई आ रही है जी. Follow the instructions given in the brackets to complete the sentences with suitable complements from the box. हमारे पास यहाँ पे complements दिए गए हैं और उसके बाद कुछ sentences हैं जी. 10 sentences are given also और we have to complete these sentences according to the instructions that are given in the brackets. For example, our teacher is dash noun. यहाँ पे हमने noun लगाना है. Our teacher is Miss Maria Saad. Our teacher is Miss Maria Saad. ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2 है जी मैडम इज़ डैश नाउन फ्रेज. हमने नाउन फ्रेज लगाना है. मैडम इज़ एन इंग्लिश टीचर. नेक्स्ट है जी आवर क्लासरूम इज़ डैश एडवर्ब हेयर. इन दिस रूम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन नाउ इज़ प्रोनाउन हर. एट प्रेजेंट शी इज़ होल्डिंग टॉक्स. प्रपोजिशनल फ्रेज विद द स्टूडेंट लीडर्स. नेक्स्ट है जी आवर लीडर्स आर एडजेक्टिव्स. एक्साइटेड. Amar talks in English very adverb fluently. These are the plain. Amar talks in English very fluently adverb है जी fluently. These are the plain going adverbial particles. Up. My friend looked very adjective pleased. It seems class हमने पुट करनी है. It seems that everything will be just fine. Okay students, ये था हमारा आज का लेक्चर. और आज के लेक्चर्स में हमने अपना जो चैप्टर था वर्ब्स वाला उसको कंप्लीट कर लिया है. हमने डिटेल में वर्ब्स से रिलेटेड पढ़ा कि फ़र्स्ट हमने यही डिस्कस किया कि वर्ब्स 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कुछ वर्ब्स होते हैं जो अपना मीनिंग्स कन्वे करते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्ट के, और कुछ होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. देन हमने डिस्कस किया कि वो वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, और वो वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. देन हमने डिस्कस किया कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स में जो कम्प्लीमेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्स आते हैं वो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब्स में जो कम्प्लीमेंट्स होते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स होते हैं. नेक्स्ट उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ कम्प्लीमेंट्स को डिस्कस किया कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए हमें किस किस्म के कम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, और इसके बाद हमने कम्प्लीमेंट्स से रिलेटेड एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया. और हमारी जो लेट्स रिवाइज वाली एक्सरसाइज है इसमें फिर हम होल चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं या उनके बारे में हम जानते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको होप यू हैव टू अंडरस्टूड दिस टॉपिक इन अ बेटर वे. सो complete your exercises that we have discussed in today's lecture on your books also. Okay students, exercise number E, F, G, H or I you have to complete on your books also. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.